Hello my friends, welcome once again. Today we are going to learn about some topics related to class 10 chemistry chapter 1 chemical reactions and equations. This video is the 7th video of this chapter. So what topics should be covered in today's video? Let's see. Type of chemical reactions. We are going to discuss here type of chemical reactions. The main type of chemical reactions are as follows. You can see combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. Means this is displacement reaction is also known as single displacement reaction. The other name is single displacement reaction. So the next type is double displacement reaction. Now let's start. Class 10 chemistry part 7 chemical equations and reactions. Type of chemical reactions we have already discussed about what are the types. Today we only focus about two types of chemical reactions. First one is combination, second one is decomposition. Decomposition reaction will not be completed because some parts has been left. If I cover the total part of decomposition reaction, then the video will be so lengthy. So in the next video the remaining part of the decomposition reaction will be covered. Now the first type is combination reaction. So what do you mean by combination reaction? What are its examples? Let's see. Combination reaction, in Hindi it is known as संयोजन अभिक्रिया. What should be the definition? Combine. Combination is formed from the word combine. Combine means to get together, to join. So combine, combines from combine word, the reaction name is given combination reaction. So in this chemical reaction two or more substances will combine together to form a single substance is known as combination reaction. So let's see the definition. The chemical reaction in which two or more substances combine to form a single substance is called a combination reaction. Means वैसा chemical reaction, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद में सिंगल सब्सटेंस यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. यानी कि इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे, रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन सी दैट द सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे हम लोग जो यूज किए हैं, आप देखिए सब्सटेंस टर्म यूज किए हैं. सब्सटेंस इसलिए यूज किए हैं कि उस सब्सटेंस के जगह पे दो एलिमेंट्स हो सकते हैं. ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो सिंगल कंपाउंड बनाएगा. अगर एक एलिमेंट हो और अगर एक कंपाउंड हो, दोनों कंबाइन करेगा तो भी सिंगल कंपाउंड बनेगा. हो सकता है कि ये दोनों कंपाउंड हो, दोनों कंपाउंड ही एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और एक सिंगल कंपाउंड यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया है, तो ये भी हो सकता है. चलिए एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. The first example is what? Let's see on the screen. The first example is burning of magnesium ribbon in air. Magnesium is available in the form of ribbon or in the form of wire. वायर के फॉर्म में भी मिलेगा, रिबन के फॉर्म में भी मिलेगा. ये हम लोग फर्स्ट ये रिएक्शन है, ये हम लोग देख चुके थे. कब देखे थे? तो ये हम लोग देखे थे जब हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे, वहाँ भी देखे थे. मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? तो एक वाइट पाउडर होता है और यह वाइट पाउडर ही बनाता है यानी कि सॉलिड के फॉर्म में. Mg + O2 रिएक्ट्स MgO. इसको बैलेंस किया गया है. आप बैलेंस करना सीख चुके हैं, अपने से भी ट्राई कीजिए. अपने से बैलेंस करना कोशिश करना है आपको. अगर दिक्कत होता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोट कॉपी बनाएंगे उससे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर. हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल गैस, बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है. H2 गैस. H2 गैस को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या बनाता है? तो वाटर बनाता है, H2O.
ठीक है। यहाँ भी देखिए ध्यान से, ऊपर वाले रिएक्शन में भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पे एक सब्सटेंस मैग्नीशियम है, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बनाया, तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है वाटर। ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल इज कार्बन। जो कार्बन है वो बर्न करता है, यानी कि सी बर्न करेगा किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। तो C+O2 तो क्या देता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी दो हैं, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कंबाइन किया क्लोरीन गैस के साथ में। व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ क्लोरीन गैस देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म। यहाँ पे गैस है, देखिए ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना है वो भी क्या है, गैस है। इसलिए सारे के ब्रैकेट में उनके फार्मूला, उनके सिंबल के बगल में G लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कोई बात करेगा कि सर हाइड्रोजन क्लोराइड तो एसिड होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हाउ वी कैन प्रिपेयर एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे देखिए दिस रिएक्शन इज यूज्ड, यहाँ लिखा हुआ दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो इसी गैस से बनाते हैं। जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये इस गैस को डिजोल्व करते हैं वाटर में तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे एक वाटर ले लेते हैं, इस वाटर में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब पास होगा वाटर में मिक्स हो जाएगा, हाईली सोल्यूबल होता है, बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है और मिक्स हो करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला एग्जाम्पल ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये होता है बर्निंग ऑफ सोडियम। जब सोडियम को बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, तो क्लोरीन गैस के प्रेजेंस में। अब ये सोडियम जो है Na इसका सिंबल है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ये जो है बहुत ही हाईली वेरी वेरी रिएक्टिव है। ये एयर में एक्सपोज करने से जलने लगता है, वाटर में रखने से जलने लगता है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन के अंदर इनसाइड केरोसिन स्टोर करके रखा जाता है। तो इस सोडियम को अगर आप बर्न करते हैं क्लोरीन गैस में तो Na+Cl2 ये बनाएगा NaCl। NaCl क्या है, तो एक ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड यानी कि जो हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ बातें हैं, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन का बात कर रहे थे, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंज, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था या फर्स्ट वीडियो था, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सोडियम है ये पॉइजनस होता है। सोडियम जो मेटल है वो बहुत ही पॉइजनस होता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो भी पॉइजनस है, ये भी पॉइजनस होता है। और ये दोनों जब बनता है, ये सोडियम क्लोराइड ये क्या है, एडिबल है, इसको हम लोग खाते हैं, तो ना पॉइजन यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पे दो पॉइजनस सब्सटेंस मिल करके एक एडिबल सब्सटेंस बना रहे हैं। मतलब कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज की खासियत होता है कि जो शुरुआत में जिसका प्रॉपर्टी जो लेते हैं रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज हीटिंग ऑफ आयरन पाउडर विथ सल्फर, यानी कि आयरन का पाउडर लेना है, आयरन के पाउडर को आप सल्फर के साथ हीट कीजिएगा तो क्या होगा, ये आयरन का पाउडर, पाउडर मीन्स क्या है, सॉलिड ही है, तो उसको हम लोग एस से लिखेंगे। ये Fe हो गया आयरन का पाउडर, इसको सल्फर से के साथ में मिला दीजिए और मिलाने के बाद जो यहाँ पे डेल्टा का साइन देख रहे हैं एरो के ऊपर में, ये जो डेल्टा का साइन है इट रिप्रेजेंट्स हीट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को, यानी हीट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आयरन सल्फाइड बनाता है। ये हम लोग 9th क्लास में भी बात किए थे, ठीक है, आयरन सल्फाइड हो गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7, देखिए 7 एग्जाम्पल देखते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं जो जहाँ तक अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो देखे हैं, ये सोडियम क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट, यानी कि ये एक एलिमेंट हो गया और दूसरा ये एलिमेंट हो गया, ये दोनों मिल करके क्या बनाया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, यानी कि दो एलिमेंट मिलते हैं और सिंगल कंपाउंड बनाता है। आगे देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग हीटिंग ऑफ आयरन देखे थे, आयरन भी क्या है, एलिमेंट, और ये सल्फर भी क्या है, एलिमेंट, ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बनाया था, कंपाउंड बनाया, ठीक है। आयरन सल्फाइड क्या है, तो एक कंपाउंड है, तो दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट में क्या देखेंगे
कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है और एक तीसरा कंपाउंड बनाता है, यानी कि दो कंपाउंड मिल करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम बोलते हैं, चूना बोलते हैं, या इसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो क्विक लाइम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर के साथ हमें मिक्स कर देना है। तो वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस रिएक्शन इन द टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ पे भी बात किए थे। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो पाउडर फॉर्म में होता है। इट इज़ अ वाइट पाउडर। इसको सेलेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्ट लाइम। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, ये पहली बात हो गई, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये जो सेलेक्ट लाइम है, सेलेक्ट लाइम क्या होता है, तो वाइट पाउडर होता है, उजला उजला पाउडर। पाउडर इज ए सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड इसीलिए लिखा गया था। अब यहाँ पे जो क्विक लाइम है, यानी कि जो चूना है, इसका इस्तेमाल है वाइट वाशिंग ऑफ वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के दीवारों को वाइट वाशिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पुताई करने के लिए। जो हमारे घर की दीवारें होती है, तो चूना का इस्तेमाल करके हम लोग उससे पुताई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वाटर इज़ एडेड इन लार्ज क्वांटिटी, वाटर को बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिलाते हैं, किसके साथ में, तो ये जो लाइम है यानी क्विक लाइम है, क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, यानी कि CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। एक क्विक लाइम या फिर लाइम के नाम से जाना था। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिलाना है, वाटर। एक्सेस अमाउंट में क्या मिलाएंगे, वाटर। जब एक्सेस अमाउंट में वाटर मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, CaOH का हॉल 2 का सोल्यूशन बनेगा। ये सोल्यूशन है हॉल 2 सॉरी यहाँ लिख देते हैं CaOH का हॉल 2, ये हो गया। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्वस। एक्वस का मतलब सॉल्यूशन, वाटर में सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस बोलते हैं। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं दीवारों पे पुताई करने के लिए। अब क्या ये होता है कि ये जो दीवारों पे चढ़ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में धीरे धीरे स्लोली रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक वेरी थिन लेयर ऑफ शाइनी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही पतला कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूशन फॉर्म में दीवार पे लगाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। देखिए एक वेरी थिन लेयर होता है, शाइनी लेयर, और इसके साथ में वाटर बनता है। अब ये जो शाइनी लेयर बनता है, इसी कारण से दीवारों में चमक आ जाती है, दीवार चमकने लगता है। लेकिन ये 2 से 3 दिन के बाद होता है, यानी कि इट टेक्स 2 to 3 डेज। अब यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रहा है शाइनी, यानी कि चमकदार, थीन और वाइट लेयर CaCO3 का बन रहा है, यानी कि वाइट लेयर बनता है, यहाँ पे चमकदार होता है। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग मतलब पुताई। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला ये है कि व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसको, अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में। अब यहाँ पे देखिए, ये अमोनिया है, इसका फार्मूला होता है NH3। अमोनिया का फार्मूला हो गया NH3, NH3 का मतलब अमोनिया, ठीक है। और एक होता है अमोनियम NH4, यहाँ पे NH4 की बात नहीं कर रहे हैं, NH4, हम NH4 का बात नहीं कर रहे। ये NH4 अमोनियम आयन होता है, प्लस चार्ज वाला, ठीक है। हम लोग यहाँ अमोनिया कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अमोनिया कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। तो चलिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का रिएक्शन कराते हैं। तो ये अमोनिया देख रहे हैं NH3 है, इसके साथ में रिएक्शन कौन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड गैस बनता है, अमोनियम क्लोराइड गैस, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे देख रहे हैं, अमोनियम अभी जो बोले थे हम, ये अमोनियम होता है NH4, और इसमें क्लोरीन जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड रहेगा, और ये इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ये डेंस वाइट फ्यूम होता है, डेंस मतलब बहुत ही गाढ़ा, घना, वाइट, उजला प्रकार का फ्यूम बनता है जब अमोनिया का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ में कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हम लोग कल बात किए थे। CO वेरी पॉइजनस गैस, बहुत ही पॉइजनस गैस है। ये बनता कैसे है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि
एक लिमिटेड सप्लाई, बहुत ही कम ऑक्सीजन के सप्लाई में हम लोग उस फ्यूल को जलाते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था। यहाँ पे बैलेंस आप आसानी से कर सकते हैं, ट्राई कीजिए बैलेंस करने का। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन फिर से ऑक्सीजन के साथ में। यह सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 को रिएक्शन करा रहा है ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ में, तो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब SO3। ये सारे के सारे यहाँ पे आप देखिए क्या एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। और यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, ये एक कंपाउंड हो गया और इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहा है कौन, एलिमेंट है ये ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, तो एक कंपाउंड यानी कि CO2 बना रहे हैं, कंपाउंड हो गया। मतलब कि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बात किए थे शुरुआत में, तो बोले थे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, सिंगल कंपाउंड। ये हो सकता है एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा, हो सकता है कि एक कंपाउंड एक एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। यानी कि हमेशा जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो आप बोलिएगा कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक वर्ड आता है डिकम्पोज, वर्ड आता है डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी को ब्रेक करना, किसी को तोड़ देना, डिसइंटीग्रेट कर देना, यानी कि उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो डिकम्पोज वर्ड से ये जो डिकम्पोज है इसी से आया है डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, तो एक रिएक्टेंट जो होता है, एक वैसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड टूट करके छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड, यानी कि एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप मतलब टूटता है, या ब्रेक्स इनटू यानी कि टूट जाता है, ये दोनों एक ही वर्ड है, स्प्लिट अप या ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बात यहाँ पे याद रखिए कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एक A है, एक कंपाउंड है, ये जब ब्रेक होगा तो ये B बनाएगा और प्लस में C बनाएगा। अगर इस फॉर्म का कहीं कोई है, इस फॉर्म का आपको दिखाई देता है कहीं पे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, हो सकता है 3 भी हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 को रहेगा। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये A था और ये B, ये दोनों मिल करके एक सिंगल बनाया था C, यानी कि 2 यहाँ पे रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किसका, ये बात कर रहे हैं कि एक रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या 2 से ज़्यादा का करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ये X है और X टूट करके क्या बना रहा है, Y बना रहा है, Z बना रहा है और कोई एक और W बना रहा है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कुछ पॉइंट्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो याद रखना है। देखिए यहाँ पे सप्लाई ऑफ एनर्जी इज़ नेसेसरी, यानी कि एनर्जी कहीं न कहीं से मिलना चाहिए तभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि सप्लाई ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जब एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है किसी कंपाउंड पे, तो वो कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो जस्ट ऑपोजिट है किसका, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट, मतलब कॉम्बिनेशन में 2 मिल करके सिंगल बनाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जो सब्सटेंस है वो टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जस्ट ऑपोजिट है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का टूट जाना, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हम बताए थे, कल ही बात किए थे, ये मार्बल के फॉर्म में होता है या फिर लाइम स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, लाइम स्टोन या मार्बल। तो लाइम स्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको ये जो सिंबल देख रहे हैं डेल्टा, ये हीट है, यानी कि हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये देखिए, इसी को हम लोग लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं, यानी कि लाइम या क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है, कॉमन नेम। कैल्शियम ऑक्साइड इज द केमिकल नेम, लाइम एंड क्विक लाइम
आर द नेम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एज कॉमन नेम, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं। इन इंडस्ट्री दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइम, यानी चूना बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो यहाँ पे चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसी रिएक्शन का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में करते हैं। क्यों? चूना बनाने के लिए। ये जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम CaO, इसका इस्तेमाल लार्ज क्वांटिटी में करते हैं किसके प्रोडक्शन में? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इस चूना का इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है, ग्लास मतलब कि शीशा, जो शीशा का जो इंडस्ट्री है उसमें हम लोग इस क्विक लाइम का या चूने का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चूना कहाँ से बनता है? तो लाइम स्टोन को हीट किया जाता है तो ब्रेक होकर के चूने का फॉर्मेशन करता है। उसमें जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो सारे इम्प्योरिटीज को हटाने के बाद चूना बनता है। चलिए यहाँ पे एक टर्म आया है थर्मल डिकम्पोजिशन, देखेंगे ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। यानी वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होता है? विच इज़ कैरीड आउट, यानी कि जो होता है बाय अप्लाइंग हीट, यानी कि हीट देते हैं तो हीट देने के बाद में ये रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ही होता है रिलेटेड टू हीट। ये थर्मल ये थर्मल का मतलब है रिलेटेड टू हीट, यानी कि जो हीट से रिलेटेड है उसको हम लोग थर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब जो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देंगे, हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और तब जा करके वो बनेगा प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये है डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 जो अभी हम लोग ऊपर देखे थे, और एक और है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोरेट। तो कैल्शियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कोई सब्सटेंस है, जैसे सपोज कीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को क्या करते हैं हम लोग? हीट देते हैं, हीट देंगे तो ये कंपाउंड छोटे छोटे दो टुकड़ों में यानी कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी ये दोनों प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है। ये इसका प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, ये जो है प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग प्रॉपर्टी वाला बनता है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, जो हम यहाँ पे एनर्जी इसको दे रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे जाता है और इसके बॉन्ड को तोड़ देता है। यानी कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उस एटम के अंदर में जो केमिकल बॉन्डिंग है जिसके कारण आपस में जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड टूट जाता है और वो एटम्स अलग अलग फिर से वापस में रीअरेंज होकर के नया नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, ये देखिए यहाँ पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट CHLORAT क्लोरेट, यहाँ पे है KClO3, यानी बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। अब ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये कैटलिस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाई का मतलब दो, यानी कि O2 है वहाँ पे लिखा हुआ। जैसे Mn मतलब, तो ये जो Mn है ये तो मैंगनीज हो गया और ऑक्सीजन 2 है O2, तो ये हो गया MnO2। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ने के लिए हीट तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा एक कैटलिस्ट देना पड़ेगा। उस कैटलिस्ट का नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो वो दो प्रोडक्ट में, सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो क्या नाम है उसका? तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरेट है और यहाँ पे क्लोराइड है। देखिए Cl मतलब क्लोराइड, Cl किसी के साथ जुटा हुआ है तो क्लोराइड, और इसके साथ में O3 है तो ये क्लोरेट होता है, ये इसको क्लोरेट बोलते हैं। लेकिन केवल Cl है तो इसको हम लोग क्लोराइड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो था पोटेशियम क्लोरेट था, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है। और इसके साथ में क्या निकलता है? तो इसके साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। और ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिपेयर करने में करते हैं। किस गैस को? ऑक्सीजन गैस को। कहाँ पे? तो लेबोरेटरी में। यानी लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकलता है उस गैस को आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस, और इसको फिर फर्दर रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ध्यान से देखिए, फेरस सल्फेट, हम लोग एक टॉपिक आया था ऑक्साइड्स ऑफ, एक बार रिपीट करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्साइड के बारे में बात किए थे। तो इसमें 3 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक आयरन होता है जिसका वैलेंसी 2, जिसको US लगा के बोलते हैं, OUS, फेरस। लेकिन एक आयरन ऐसा होता है जिसका वैलेंसी 3 होता है, उसको इक लगा के बोलते हैं, फेरिक।
यानी कि जहाँ पे आयरन का वैलेंसी 2 होगा उस कंपाउंड का नाम फेरस से होगा, और जहाँ पे आयरन का वैलेंसी 3 होगा उस कंपाउंड का नाम इक से यानी कि फेरिक से होगा, फेरिक बोलेंगे, जैसे फेरिक ऑक्साइड, और 2 वाले को फेरस ऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे सल्फेट लिया गया है, यह हो जाएगा फेरस सल्फेट, यानी कि 2 वैलेंसी लिया गया है। ये जो आयरन है, आयरन का कितना वैलेंसी लिया गया है, 2 वाला, यानी कि 2 वाले के वैलेंसी लीजिएगा तो देखिए किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा। ये Fe है और यहाँ पे SO4 है। Fe मतलब आयरन का वैलेंसी 2 और SO4 का कितना होता है 2, तो 2 से 1 बार में, ये 2 से 1 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इस प्रकार से कट करते हैं। तो ये Fe में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो Fe हो जाएगा, और SO4 में भी 1 से करेंगे तो SO4, यानी कि इस प्रकार से क्या बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड का फार्मूला बन रहा है FeSO4, इसको बोलते हैं हम लोग आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। यहाँ पे वैलेंसी आयरन का 2 है। तो आप इस रिएक्शन में देखिए लिखा हुआ है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, फेरस जहाँ बोल दिए तो ये क्लियर हो गया कि वहाँ वैलेंसी 2 है। लेकिन आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी कि आयरन का वैलेंसी सेकेंड है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे ग्रीन कलर क्यों होता है, इसमें कुछ खास बातें हैं, देखेंगे। अब इसको जब हीट करते हैं स्ट्रांगली, यानी कि बहुत ही तेज़ हीट देना है। जब तेज़ हीट दीजिएगा तो ये जो फेरस सल्फेट था वो टूट करके फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक कहने का मतलब ये हो गया Fe और यहाँ पे ऑक्सीजन। इसका वैलेंसी जो आयरन का वैलेंसी जो है वो 3 है, तो ऑक्सीजन के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वैलेंसी बदल जाता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे यानी कि Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, या बोल सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आयरन थर्ड ऑक्साइड। और ये किस कलर का होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल रेड ब्राउन कलर का ये होता है। इसके साथ में 2 गैस निकलते हैं, ये है सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरा है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन का हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था FeSO4, इसको हीट किए थे तब बनाया था ये Fe2O3, प्लस में बनाया SO2 और प्लस बनाया SO3। चलिए बैलेंस करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बैलेंस किसको करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे आयरन को। यहाँ पे आयरन कितना दिख रहा है, 2। यहाँ पे आयरन कितना है, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ इस प्रकार से। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये 2 आयरन में मल्टीप्लाई किया तो आयरन 2 हो गया, यहाँ पे आयरन 2 बैलेंस हो गया। लेकिन ये जो 2 है इस सल्फ़र में भी करेगा तो सल्फ़र 2 हो गया। तो काउंट करेंगे और देखेंगे हम लोग कि क्या सल्फ़र 2 है, तो बिल्कुल एक सल्फ़र इस जगह पे है, दूसरा सल्फ़र इस जगह पे, तो सल्फ़र भी 2 हो गया। अब यही वाला 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी करेगा, तो ऑक्सीजन जो ऑलरेडी 4 था जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में काउंट कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि टोटली सब बैलेंस्ड हो चुका है। तो बस सिर्फ हमको क्या करना था, यहाँ पे 2 लगाना था और बैलेंस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट्स में लिखा हुआ है, अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऐसे। देखिए FeSO4 इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में अवेलेबल रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। क्रिस्टल कहने का मतलब क्या होता है कि एक दाना दाना जो बोलते हैं रवादार क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। अब इन 1 मॉलिक्यूल यानी कि उस मॉलिक्यूल में, यानी अगर एक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल देख नहीं सकते ना हम लोग, अगर आप एक आयरन, ये जो है सल्फेट, आयरन सल्फेट का एक दाना लेते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होंगे, यानी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पे उसमें होगा। तो एक जब लेते हैं FeSO4 यानी कि एक मॉलिक्यूल में, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच रहता है इसमें, इस प्रकार से इंटू 7 H2O, ये इंटू है, ये इंटू 7 H2O, यानी कि इसका कंप्लीट फार्मूला, अगर फेरस सल्फेट का कंप्लीट फार्मूला देखा जाए क्रिस्टलाइन फार्मूला, तो ये है FeSO4 इंटू 7 H2O। FeSO4 इंटू 7 H2O ये किसका फार्मूला है, तो ये है आयरन सल्फेट के क्रिस्टल का फार्मूला। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो FeSO4 है लेबोरेटरी में क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और एक मॉलिक्यूल में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला है FeSO4 इंटू 7 H2O, ये इसका फार्मूला हो गया। इससे हम लोग इसका नेमिंग भी कर सकते हैं,
केमिकल नेम क्या होगा, तो ये आयरन है यानी कि फेरस है, और सल्फेट फेरस सल्फेट, और 7 को हेप्टा कहते हैं, याद रखिएगा। हम मैथ में पढ़े होंगे 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा, 5 को पेंटा, ऐसे ही 7 को हेप्टा बोलते हैं। और जहाँ पे वाटर रहता है उसको हाइड्रेट बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। तो फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे और बातें क्या हैं, देखिए यहाँ पे और कुछ बातें लिखी हुई है कि ये जो दिज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो 7 मॉलिक्यूल 7H2O यहाँ पे देख रहे हैं, ये दिज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ईच क्रिस्टल, यानी कि हर एक क्रिस्टल में प्रेजेंट रहता है, यानी कि फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के हर एक क्रिस्टल में प्रेजेंट रहता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 7 मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो 7 वो मॉलिक्यूल है, इसी के कारण से इसका कलर जो होता है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। यानी फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, ग्रीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट। अगर आप इसको हीट कर दीजिएगा, तो हीट है तो वाटर तो वेपर बन करके उड़ जाएगा, यानी कि इट लॉसेस, यानी कि लॉस कर देता है 7 मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा, तो इसका ग्रीन कलर भी ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। और जब वाटर ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है। ड्राई का मतलब अब्सेंस ऑफ वाटर, उसको एनहाइड्रस, यानी कि केमिस्ट्री में वर्ड है एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब बिल्कुल ही कम्प्लीटली ड्राई, इट डज नॉट कंटेन एनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि एनहाइड्रस आयरन सल्फेट बनाता है, यानी कि फेरस सल्फेट जो है एनहाइड्रस हो जाता है, जिस कारण से इसका कलर वाइट हो जाएगा, यानी कि वाइट हो जाएगा इसका कलर। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे फेरस सल्फेट लिखे हैं, देखिए यहाँ 7H2O नहीं लिखे हैं, ये सुविधा के लिए नहीं लिखे हैं ताकि केमिकल रिएक्शन को आसानी से बैलेंस किया जा सके और उसको याद रखा जा सके, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कलर लिखे हैं, ग्रीन कलर तभी होगा जब आप यहाँ पे 7H2O लगाइएगा। अगर आप 7H2O नहीं लगाते हैं तो वाइट होगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि जहाँ भी लेबोरेटरी में मिलता है, हर जगह पे मिलता है, तो ये ग्रीन कलर में ही मिलता है। जब आप उसको गर्म कीजिएगा तभी वाटर वेपर बन के उड़ेगा और वाइट कलर का हो जाएगा। जब ये वाइट कलर का हो जाता है, FeSO4 वाटर को लॉस कर देता है, तब जा कर के और गर्म करने से फेरिक ऑक्साइड और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, देखिए ये हमारा आज का लास्ट होगा, लास्ट पॉइंट है। ये बर्नर है, देखिए बर्नर, इस फिगर बना लीजिएगा। फिगर को बनाना है, फिगर बनाने में अच्छा लगता है, सीखने के लिए भी मिलता है किस प्रकार से कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है। तो ये बर्नर है, बर्नर में यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है। एक होता है टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब की एक होता है बॉइलिंग ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का मतलब है कि जनरल ग्लास से बना होता है, और एक होता है बॉइलिंग ट्यूब जो हार्ड ग्लास से बना होता है, जिसको हीट करने के बाद वो क्रैक नहीं होता। तो बॉइलिंग ट्यूब लेना है। उस बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, यहाँ पे देखिए ये है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, यानी कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो ग्रीन कलर का होता है वो लिया गया है। अब इसको हीट करेंगे तो वाइट हो जाएगा, वाटर पहले निकलेगा, इसके बाद वाइट होने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये डिकम्पोज होना शुरू होगा, और डिकम्पोज हो करके एक ब्राउन कलर का Fe2O3 ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाएगा, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसमें ब्राउन कलर का सब्सटेंस बच जाएगा, और यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ये तीनों बाहर निकल जाएंगे, गैस जो है निकल जाएगा, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों गैस मिक्स होकर के बाहर निकलते हैं। और जब इसको स्मेल किया जाएगा, रूम में जिस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा वहाँ पे बर्निंग स्मेल आएगा सल्फ़र का, यानी कि स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फ़र, सल्फ़र को जिस प्रकार जलाते हैं उस प्रकार का स्मेल मिलेगा। अब इसको कैसे करना है, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर एक होता है जिससे टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ करके और जो बर्नर का फ्लेम है उसके ऊपर में रखना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स केयरफुली। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत सारे पॉइंट को बताया गया है, हर एक पॉइंट को दिमाग में रखना है। एंड यू हैव टू मेक नोट कॉपी, जैसे होता है सीरीज वाइज, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और टुडे इज़ द पार्ट 7, 6, 7, यानी कि 7 है। तो आराम से सबका बिल्कुल वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद नोट कॉपी बनाइए और उसको चीज़ों के समझने की कोशिश कीजिए।